today's topic is what? A binary operation. Okay. Next topic, binary operation. Thalen and Chaya attend कर लिए. Okay. So, are you able to see topic जो लिखा दिख रहा है ना? हेलो, टॉपिक दिख रहा है, सुनाई दे रहा है? Okay. Okay. Binary operation. So this is a new type of topic. Binary operation. Bi means what? Two. Okay. Bi means two. So two elements are operated on an operation. Here important is what? Operation. अब ये जो इस फर्स्ट चैप्टर का जो टॉपिक बचा है ना, अभी बाइनरी ऑपरेशन हमको पढ़ना है. बाइनरी ऑपरेशन मीन्स इफ वी आर हैविंग ए सेट, देन टू एलिमेंट ऑफ द सेट कैन बी combined in any by a rule and output is same as the element of set itself. मतलब सेट के दो एलिमेंट को मिलाना है और उसी सेट का एलिमेंट बनना है. दैट इज बाइनरी ऑपरेशन. ओके, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन इज ए फंक्शन. बाइनरी ऑपरेशन जनरली डिनोटेड बाय स्टार और ओ और स्टार जनरली डिनोटेड बाय ऑपरेशन एज ए फंक्शन जैसे फंक्शन लेते हैं ना, उसी टाइप का है. सो suppose we have set A and A cross A to A, ये mapping means this, just like function. A cross A means what? A cross A contains order pair, means A cross A means A के ही दो एलिमेंट का ऑर्डर पेयर है. ओके, सो A B element of A also where A B are element of A. This element is connected to another element of the set by this operation. That is how? Suppose A belongs to A and B belongs to A, then AB order pair is element of A cross A. So star, we can suppose the star is a function from A cross A to A. That is कोई सेट है, उस सेट के दो एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है और जो एलिमेंट बन रहा है वो भी सेट का ही बन रहा है, बिकॉज दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज वी आर हैविंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर, set of natural number 1 2 3 up to and so on. ये set of natural number. So इसमें कोई भी दो एलिमेंट लो और एक ऑपरेशन लगाओ. ऑपरेशन में भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एनी डेफिनेशन में भी एनी डिफरेंट टाइप ऑफ रूल. ओके, सो टेक सपोज एडिशन. In place of star, we are defining addition. Star addition n cross n to n may be defined because take any two natural number and operate this operation just like 2 and 3. 2 plus 3 because plus is the operation. 11 2 3. So 2 plus 3 equals to what? 5. 5 is again belongs to here. जो आउटपुट है वो भी सेट का होना चाहिए. So then we say that this type of mapping is or function is called a binary operation. Binary means two. So किसी भी सेट के दो एलिमेंट को कनेक्ट करना है और वो एलिमेंट फिर से सेट में होना है. अगर ऐसा है, that is binary operation. This type of mapping is called binary operation. Mapping function type का definition given होगा. So Binary operation, what is binary operation? Binary operation is a function
Binary operation is a function. Binary operation is a function. Star defined as this. स्टार ए क्रॉस ए टू ए का कोई दो एलिमेंट लो, कनेक्ट करो, इसी ऑपरेशन से एक एलिमेंट होना चाहिए. ओके, सो हियर इफ वी ऑपरेट टू एलिमेंट ए स्टार बी, ए and b are connected by this operation, we can write this type of notation: a star b equals to, may be given any type of definition, a plus b, a square b, a plus ab square, and etc. So this is the output and this belongs to a, must be belongs to a, then we can say the star is a binary operation. Okay, this is the definition of binary operation. Okay, now किसी भी सेट के एलिमेंट को कनेक्ट करना है, उसी सेट का एलिमेंट होना है, दैट इज बाइनरी ऑपरेशन. नाउ देयर आर 4 properties of this operation, that is, first is commutative, second associative, third existence of identity, fourth existence of inverse of an element. So all 4 are very very important. So how can we express and how can we say that star is a commutative? A star means what? Now a star means binary operation. Binary operation is commutative. Operation is commutative. Okay, and operation is associative. We say like this. So star, binary operation, star is commutative if A star B is equals to B star A for all AB belongs to A. Binary operation star is commutative. We say binary operation star is commutative if A star B equals to B star. A star B means what? Connectivity of two elements by star. B star means in reverse order. Operation star is commutative if A star B equals to B star A for all AB belongs to A. Okay, Anjali, सुनाई दे रहा है? Hello. Yes, sir. Okay. Now A star B equals to B star A for all AB belongs to A. I think all of you know about this AB equals to BA commutativity. Okay, so here new topic, that is binary operation. Binary operation A cross A to A. This is the definition. If this is satisfied, means output means combination of this the two element of a set is again the element of set, that is binary operation. Okay. Now A star B equals to B star A. That is commutativity. Okay. If this rule follow for every element of the set on which binary operation is defined, then we can say operation is commutative. Star operation is commutative. Similarly, just we will take example questions from exercise for understanding deeply. Okay, so first of all, just understand what is the definition. Okay, commutativity. Now star is associative. You know, star is associative. Associative. If associativity means just we require 3 elements: A star B star C equals to A star B star C for all A, B, C belongs to the set.
This is a combination, associative. This is commutative, and this is binary operation. Operation is commutative like this. Operation is associative. Means three elements we have to take from the set ABC and combine like this. First operate A and B, and then again operate result with C. This is left hand side. Similarly, here operate first B and C, and then A operate with result, that is right hand side. If these two are equal, then we see that operation is associative. Okay, for all elements of it, the set. Commutative, associative. Okay, here suppose our operation is on natural number n cross n to n. Set of natural number, you know, set of natural number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on. So here a star is defined like this. Now a star is defined how? A star B is equals to AB. Suppose a star is defined like this. Means to take two element and its definition like this. Whenever A and B are connected, gives AB. Okay, so it is an operation, binary operation, because any two natural number are multiplied, we can get a new natural number. So this is binary operation, and we can test for commutativity, associativity. Okay, so these two will hold for this operation. Yeah, I will discuss in detail in questions. Okay, of exercise. Clear? Now, one thing, binary operation, another, second commutativity, third associativity, and fourth and fifth is very very important. See, identity element of the for the operation. Identity element ऑपरेशन के लिए होता है. बाकी सब ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं? अंजलि, छाया एंड सृष्टि. ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट is for operation. We say like this. Anyone can say identity operation for multiplication in set of real number or set of natural number or set of integers. Identity operation means if we apply identity element to any element of the set, just we will get that element. एक ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन से कनेक्ट करे तो वही एलिमेंट मिलना चाहिए. सो टेल मी एनीवन, एक जन कोई भी बताने की कोशिश करो क्या होगा. अगर नेचुरल नंबर लिया जाए सेट, उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको सबके साथ मिलाया वही एलिमेंट मिले बार बार? जीरो. मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला हूं. रेसिप्रोकल. मल्टीप्लिकेशन के लिए बोला हूं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं और नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 5 6 7 एंड एक ऐसा एलिमेंट इसमें है जिसको हर किसी भी एलिमेंट के साथ कनेक्ट करे मल्टीप्लिकेटिव के साथ तो एलिमेंट वही मिले. वेरी सिंपल. वन ना, वन है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वन है नॉन जीरो एलिमेंट के लिए ऑलवेज. सो दैट इज और जनरल डेफिनेशन विल बी identity element for the operation. Identity element for the operation, not of the set, not for the set. Operation identity element किसके लिए होता है? ऑपरेशन के लिए होता है और ऑपरेशन सेट पे डिफाइन होता है. क्लियर? If let, first of all write let because we have operation. So let star is a binary operation. Very very important. Identity element finding and inverse of an invertible element finding. Okay, so here identity element. Let star be a binary operation on a set A, then
identity element, we have to define identity element. Then an element or element should be also belong to the set. An element denoted by E of the set, इसी सेट का होना चाहिए. जैसे नेचुरल नंबर लिया तो नेचुरल नंबर का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर का हो. An element E of the set A if it exists, होना जरूरी नहीं है, इसलिए if exist. An element E of the set A if exist is called identity element for the set, for the operation स्टार. देखो डेफिनेशन मेन है, इसी डेफिनेशन दिमाग में रहेगा तो कभी भी फाइंड कर सकते हैं. आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन स्टार इफ exist is called if A star E equals to A equals to E star A, means उसके साथ किसी एलिमेंट को ऑपरेट करे तो वो एलिमेंट खुद आना चाहिए. वो लेफ्ट से ऑपरेट करे चाहे राइट से ऑपरेट करे. फॉर ऑल A बिलोंग्स टू E. वेरी क्लियर. ओके, एकदम क्लियर है ये. इस ऑपरेशन के लिए ये आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इफ A स्टार E इक्वल्स टू A इक्वल्स टू E स्टार A, बिकॉज दिस इज द बेसिक ऑफ बुलियन अलजेब्रा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. ये बुलियन अलजेब्रा है, सर्किट बनाने में काम आता है, इन फ्यूचर स्ट्रक्चर बनता है. सो राइटिंग मेथड इज मेन थिंग. अब ऐसा लिखे हम 2 into 1 की वैल्यू 2 होता है और 1 into 2 की वैल्यू 1 होता है. जब देखने से लगता है तो होता ही है, बट दिस इज स्पेशल डेफिनेशन अप्लाइड इन कंप्यूटर. इसमें क्या है, इस स्ट्रक्चर को देखना है, लिखते कैसे, ये मेन चीज है. सो A स्टार E इक्वल टू A इक्वल टू E स्टार A, ये फॉलो होता है. अगर इस ऑपरेशन के लिए तो E को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ऑपरेशन ऑन द सेट A. ओके, दिस इज identity element, definition of identity element. Okay, identity element, very very important topic. A particular type of operation दिया रहेगा, उसका identity element find करना है. if there exist then we can find. हो भी सकता है exist, नहीं भी हो सकता है. now inverse of an element. अब हम inverse find करना है. क्या find करना है, inverse. इस स्टार ऑपरेशन के लिए अगर E आइडेंटिटी है, इफ एग्जिस्ट, देन फॉर ए एलिमेंट इन द सेट A, इन द गिवन सेट में अगर कोई एक एलिमेंट है, इफ वी कैन फाइंड अनदर एलिमेंट सच दैट इफ वी अप्लाई दैट एलिमेंट विद एनी द एलिमेंट A of set, we will get identity. Then we can say existing element is inverse of the given element. Means जैसे 2 का मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, हम लोग जानते हैं. मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है. मल्टीप्लिकेशन के लिए सपोज मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, स्टार जो है ना, ये मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करते हैं. दिस इज मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड n to n. ओके, तो इसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना है, 1. ओके, अब इस सेट नेचुरल नंबर ले लिया. अब ऐसा कोई एलिमेंट है जिसको सपोज 2 इज नेचुरल नंबर. 2 एक एलिमेंट है जिसको ऐसा एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करे और E मिल जाए. है क्या नेचुरल नंबर के अंदर? टेल मी, तुम लोगों में से कोई बताओ. हेलो, No, sir.
बिकॉज 2 को इंटू करें, किससे इंटू करने से 1 आएगा? 1/2 से, और 1/2 नेचुरल नंबर में नहीं है. सो इफ वी डिफाइन multiplication from n cross n to n, then inverse will not exist, but identity exist. किसी भी एलिमेंट के लिए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं रहेगा एक्सेप्ट 1. वो आइडेंटिटी को केवल नहीं लिया जाता है. ओके, बाकी किसी भी एलिमेंट के लिए एग्जिस्टेंस नहीं है. बट अगर हम इसको ये ले ले, सेट ऑफ रियल नंबर ले ले, और फॉर नॉन जीरो एलिमेंट यू कैन गेट इनवर्स, बिकॉज 2 के लिए 1/2 हो जाएगा. 1/2 से 2 को इंटू करोगे तो 1 आएगा. दैट इज आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए, बट फॉर ओनली फॉर नॉन जीरो एलिमेंट्स, बिकॉज जीरो के लिए नहीं है. जीरो के लिए थोड़ी मिलेगा. 0 इंटू 1/0, नो, फॉर नॉन जीरो एलिमेंट. दैट मीन्स यू कैन से एक्सेप्ट 0 फॉर नॉन जीरो रियल नंबर्स. इस केस में मिल जाएगा. मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी भी 1 हो जाएगा और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मिल जाएगा. सो इनवर्स का डेफिनेशन देना है तो कैसे डेफिनेशन देना है? बिल्कुल इसी टाइप से. लेट अस स्टार्ट विद बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए. देन सेट ए विथ यू कैन राइट, बिकॉज देखो इनवर्स का डेफिनेशन देना है मींस व्हाट? फॉर डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वी रिक्वायर आइडेंटिटी एलिमेंट. सो लेट अस स्टार्ट इज अ बाइनरी ऑपरेशन विथ आइडेंटिटी एलिमेंट. विथ identity element. Definition is very very important because question solve करना logically you have to discuss. Okay, with identity element, E, with identity element E means स्टार ए पे बाइनरी ऑपरेशन है और उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट E है. देन हमको क्या फाइंड करना है? इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट. और ये एलिमेंट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल. एलिमेंट इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ इनवर्स एग्जिस्ट. ये आइडेंटिटी एलिमेंट है. देन एन एलिमेंट ए ऑफ ए is called invertible. Element is called invertible. Element is called invertible if its inverse exists. Element A of A is called invertible if also write invertible with respect to the operation, because operation different रहेगा तो inverse भी अलग अलग होता है. So is called invertible with respect to star, with respect to star operation. If there exists an element B in A such that A के लिए एक एलिमेंट B मिलेगा. A स्टार B इक्वल्स टू B star A for all A, not for this, like this. क्या लिखना पड़ेगा यहां पर? यहां क्या लिखना है? हेलो, टेल मी एनीवन, बताओ क्या लिखना है यहां? स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई है. एक एलिमेंट लिया सेट का, वो इन्वर्टिबल होगा अगर एक एलिमेंट बी का एग्जिस्टेंस हो. ए स्टार बी इक्वल्स टू व्हाट? यहां पर क्या होना है? टेल मी.
ना, ये तो नहीं होना है, ये क्यों होना है? अभी हम लोग पढ़ के आए थे ना, 2 का इनवर्स कौन हो रहा था? 1/2 ना। मिलता क्या था यहां पर? यहां क्या आना है? 1 क्या था? आइडेंटिटी एलिमेंट था ना मल्टीप्लिकेटिव के लिए। ये ए है, ये बी है और ये ई है, तो ये क्या होना है? ई। मीन्स ए का इनवर्स बी होगा। इफ ए और बी ऑपरेट होता है तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है उसी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। सो हियर बी इज इनवर्स ऑफ ए। A is invertible if there exists B such that A star B equals to E equals to B star A. Here B is the inverse of A. Here B is called inverse of A. Clear? This is the definition of inverse of an element. A star is a binary operation on the set A, and for a star in that set identity is present, है identity. तो स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, सेट ये हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट ये हो गया। देन सेट का एक एलिमेंट लिया ए, एनी एलिमेंट, उस एलिमेंट को इन्वर्टिबल बोलेंगे, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर तो A is invertible if there exists an element in the set A, B, such that A star B equals to identity element. This is the definition of invertible element of a set with respect to the operation that is defined on that set. Okay, so invertible element. ना invertible element तो क्या क्या हुआ? Binary operation. A function from A class A to A, or binary operation on A means A class A to A function. ओके, उसी जब ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट उसी सेट का होना चाहिए। सेकंड कम्यूटेटिविटी, A स्टार B इक्वल्स टू B स्टार A। एसोसिएटिविटी 3 एलिमेंट्स लेके बनाते हैं। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट A स्टार E इक्वल्स टू इटसेल्फ A और E स्टार A इक्वल्स टू आल्सो, एंड दिस इज इन्वर्ट। ओके, ये जो डेफिनेशन है ना, दिस डेफिनेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन, बिकॉज ये डेफिनेशन समझ में आना चाहिए कैसे हो रहा है। ओके, नाउ वी विल टेक क्वेश्चन लेंगे अभी। अब क्वेश्चन में ना ज्यादा लिखना नहीं है, डिस्कस करना है मेनली, है ना, और किस टाइप से क्या है कि नहीं है। वो बुक में आप देखोगे एकदम एनसीईआरटी बुक गिव्स वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट अदर बुक्स यू कैन रिफर ना आल्सो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल our target is what? Complete your NCERT book completely with the miscellaneous exercise and also example. Miscellaneous example भी करना है, exercise भी करना है। NCERT book complete करना मेन है, and then you can refer any other book. Book तो भंडार है, क्वेश्चन भी लाखों में। Okay, so here take one by one see questions. तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। ओके, दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है? हेलो, तुम लोगों के पास बुक भी होगा। डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन। इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। ओके, ऑन सेट लिया, पहला सेट क्या लिया? Z प्लस, दैट इज पॉजिटिव इंटीजर्स, डिफाइंड स्टार बाय A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B। सो क्या होगा सॉल्यूशन? बस ओनली बताना है फटाफट। टेल मी, तुम लोगों में से कोई ना कोई बताते जाओ। वो तो वेरी सिंपल है, लिखने का टेक्निक बहुत जरूरत है इसमें। ओके, 1A A स्टार B इक्वल्स टू A माइनस B। सेट क्या है? Z प्लस। फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z प्लस।
a commutative here what is binary operation or not? Binary operation or not? Is z plus means what? Positive integers. So a star b equals to a minus b. अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है, नेगेटिविटी मन में ये आता है ना, पहले ये सोचते हैं कि है कि नहीं है कि नहीं है, नॉट नेगेटिविटी. फॉर नेगेटिविटी यू हैव टू गिव ओनली एन एग्जांपल. एक एग्जांपल दोगे खत्म. यस ऐसा होना चाहिए. तो यू हैव टू प्रूव इट इन जनरल. इन जनरल मीन्स जस्ट टेकिंग सैम्पल्स, नॉट ए पर्टिकुलर एलिमेंट. पर्टिकुलर एलिमेंट लेके दिखाने से नहीं होगा. पर्टिकुलर एलिमेंट ले लेंगे, बोले एक एलिमेंट ले लिया 2, एक ले लिया 1, इसको ले लिया 2, इसको ले लिया 1. सो 2 minus 1 equals to 1. 1 belongs to also z plus. ओके हो गया. नहीं, बिकॉज इसको अगर 1 ले ले और इसको अगर 2 ले ले तो क्या हो जाएगा? 1 minus 2 equals to minus 1. Not belongs to z plus. So not binary operation. है क्या बाइनरी ऑपरेशन? हेलो, समझ में आया क्या बोला हूं? नेगेटिविटी प्रूव करना है, नॉट देन यू हैव टू टेक ओनली ऑन एग्जांपल. और इन जनरल अगर प्रूव करना है तो इन जनरल एलिमेंट लेके प्रूव करके बताना है. सो दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन और नॉट? टेल मी, क्या लिखना है? हेलो, इज इट बाइनरी ऑपरेशन और नॉट? No, sir. नो. क्या लिखना पड़ेगा? नो. नो फॉर नो, जस्ट गिव एन एग्जांपल. ऐसा बस वही जो अभी लिखा था. सिंस 1 since 2 star 3 equals to 2 minus 3 equals to minus 1 not belongs to z plus, but 2 3 belongs to z plus, implies star is not binary operation on z plus. ओके, दिस इज द राइटिंग मेथड. लिखना है इस टाइप से. एक एग्जांपल दिया खत्म. नॉट में. ओके, सेकंड का क्या होगा? फर्स्ट का सेकंड. अब डायरेक्ट बताते जाओ, बस लिखेंगे भी. व्हाट इज ऑपरेशन सेकंड? a star b equals to ab. a star b equals to ab for all ab belongs to z plus. ये है बाइनरी ऑपरेशन और नॉट? a स्टार b इक्वल्स टू ab. ये भी किसका एलिमेंट है? z प्लस का. z प्लस मींस व्हाट? पॉजिटिव इंटीजर्स. सो एनी टू पॉजिटिव इंटीजर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? यस और नो, बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? यस सर. यस सर. तो लिखना क्या है? टेल मी. लॉजिक देते भी तो बनना चाहिए, लिखते बनना चाहिए ना. वही तो मैंने, क्या लिखना है? Since 2 multiply 3 equals 2 3 पे नहीं जाना है. जो इन जनरल होता है उसके लिए जनरल बताना है. So just we have to write only what? We know that product of any two positive integers is again a positive integer. बस. Since product of या multiplication of product of any two positive integer is again a positive integer. Since ये होता ही है, दो पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करो फिर से पॉजिटिव नंबर मिलेगा. So product of any two positive integers is again a positive integer. Therefore, the star is a binary operation. थर्ड का क्या होगा बताओ बहुत जल्दी. yes no बताना है बस. ओके, थर्ड इज व्हाट? ab square. yes और no, बस क्या लिखना है? टेल मी. A star b equals to what? ab square for all ab belongs to z plus. No, not z plus. सेट दिया है क्या कुछ और?
real number, set of real number. Here set of real number. रियल नंबर का कोई भी दो एलिमेंट लो, a स्टार b इक्वल्स टू ab स्क्वायर, इज इट बाइनरी ऑपरेशन और नॉट? ये सेट ऑफ रियल नंबर है यहाँ पर, अभी तक z प्लस था पहले दोनों में, अभी सेट ऑफ रियल नंबर लिया, क्या होना है? हेलो, दो रियल नंबर ले लो ए बी और उस एक रियल नंबर का स्क्वायर करके दूसरे रियल नंबर के साथ इनटू करो, क्या मिलेगा? रियल नंबर मिलेगा कि नहीं? इज इट बाइनरी ऑपरेशन और नॉट? टेल मी. Not. कैसे? क्यों भाई? एक रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो रियल नंबर मिलेगा, उसके साथ एक दूसरे रियल नंबर को इंटू करोगे तो भी तो रियल नंबर मिलेगा ना, तो इट इज अगेन रियल नंबर ना. इफ a and b are real number, then b square is also real number, and product of a and b square is also a real number, so it is binary operation. Yes, binary operation होना है ना. फोर्थ, वन का फोर्थ बताओ, a स्टार b इक्वल्स टू क्या दिया है? 1/4. z प्लस है यहाँ पर, a माइनस बी मॉडुलस. फोर्थ पार्ट, Yes, sir. बिकॉज ये मॉडुलस के कारण पॉजिटिव बना देगा ना, डिफरेंस तो लेंगे बट मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा? ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, सो पॉजिटिव इंटीजर्स ही मिलना है. तो यस, ओके, सो यू कैन गिव लॉजिक लाइक दिस. इसको लॉजिक कैसे देंगे कि मॉडुलस गिव्स ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, सो डिफरेंस ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, modulus of difference of any two positive integers is again a positive integer, so this is a binary operation. Yes, and 1/5 last क्या होना है? a star b equals to what? Here a star b equals to a for all a b belongs to what? z plus. क्या होना है इसका? yes or no? yes. ये भी दोनों तो पॉजिटिव इंटीजर है, ए स्टार बी करोगे तो ये बताएगा, जैसे ये 2 स्टार 1 किया तो वैल्यू क्या आएगा? 2. सो ऑलवेज इंटीजर, सो यस, दिस इज आल्सो बाइनरी ऑपरेशन. ओके, नाउ टेक सेकंड क्वेश्चन. बिल्कुल इसी टाइप का डिस्कशन है सेकंड में भी. अब कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव देखना है. ओके, अच्छे से डिक्लेयर हो जाएगा. एक क्वेश्चन है, अभी हमारे पास 10 मिनट है और बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्यूटेटिविटी एसोसिएटिविटी क्वेश्चन में एग्जाम में ऑलवेज रहता है, वेदर इट इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, प्रूव दैट, ऐसा करके रहता है. ओके, सो क्वेश्चन 2, फॉर ईच बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो, डिटरमाइन वेदर स्टार इज कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव. हियर 6 ऑपरेशंस आर गिवन, सो सॉल्यूशन एक एक करके बताना है बस. इसमें भी शॉर्ट में लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट में लिखना है. फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट. ओके, फर्स्ट ऑपरेशन क्या दिया है? a स्टार b इक्वल्स टू a माइनस b ऑन z. a माइनस b फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, ओनली z, नॉट पॉजिटिव इंटीजर, टोटली इंटीजर्स. ओके, क्या होगा बताओ तुम लोग? a माइनस बी गिवन है, a माइनस बी गिवन है. ओके, होगा कि नहीं होगा बताओ? टेल मी. टेल मी, होना है कि नहीं होना है? कम्यूटेटिव क्या क्या दिखाना है? कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, यस और नो? ये कम्यूटेटिव हो सकता है कभी, ऐसा सोच सकते हो? कोई भी इंटीजर ले ले, तो कोई भी दो इंटीजर ले लो, दोनों का डिफरेंस करे तो
कॉम्पिटेटिव मीन्स व्हाट, ए स्टार बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बी स्टार ए, मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल होना चाहिए। ये कभी होगा नहीं होगा ना। सो लॉजिक कैसे देना है, ये है कम्यूटेटिविटी, मतलब ये होता है, ये होता है कम्यूटेटिविटी ये। और एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी मीन्स 3 एलिमेंट ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार ABC belongs to the set, और यहां पर for all AB belongs to set। ये दो डेफिनेशन है कम्यूटेटिविटी। सो यह सेट इज Z। एक सिंपल वे में देखे, कोई भी दो इंटीजर ले लो, a माइनस बी और b माइनस ए, दोनों की वैल्यू सेम है कि नहीं है, सेम होता है। हेलो, yes or no, commutative, yes or no, tell me, कोई तो बताओ। For any AB belongs to Z, we see that A star B equals to A minus B and B star A equals to B minus A, which are different, which are different. So the star is not commutative। बताओ मेरे को, कोई ना कोई इधर क्या होना है, कम्यूटेटिव होना है कि नहीं होना है, टेल मी, यस और नो। अभी मैं लिख दिया हूं, ये भी सब पढ़ के समझ में आ रहा है, कम्यूटेटिव यस और नो। नो सर। नहीं होगा ना इक्वल, बट नॉट के लिए एग्जाम्पल सफिशियंट होता है, एग्जाम्पल दे देना है, लिख लेना है। फॉर 2 3 बिलोंग्स टू Z, 2 3 इंटीजर्स है, we see that 2 star 3 equals to 2 minus 3 equals to minus 1, 2 star 3 equals to 2 minus A minus B, 2 minus 3 equal to minus 1, and 3 star 2 equals to 3 minus 2 equals to plus 1। दोनों अलग अलग है, वही तो है, डिफरेंट है। Implies 2 star 3 is not equals to 3 star 2, implies a star is not commutative, because negativity के लिए always you can give example। बस ये लिखो या ये लिखो, दोनों में से दोनों सही है। नेगेटिविटी जब पॉजिटिविटी दिखाना पड़ता है, यस, उसके लिए एज ए जनरल प्रूफ करना पड़ता है। एसोसिएटिविटी होना है कि नहीं, एसोसिएटिविटी, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव, ओके। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव मीन्स दिस रूल, ये रूल फॉलो होगा ऐसा लगता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल, ये तो नहीं होगा, आई थिंक नहीं होना चाहिए। सो नॉट, अगर नॉट प्रूफ करना है तो एग्जांपल लेते हैं। फॉर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ले लो, ये इंटीजर है। फॉर 1 2 3 बिलोंग्स टू Z, वी सी दैट, ये वाला प्रॉपर्टी दिखाना है, ये वाला ABC 1 2 3 के। सो क्या करना है, पहले 1 star 2 star 3 क्या होना है, 1 star 2 1 minus 2 star 3 equals to 1 minus 2 means what, minus 1, 1 minus 2 means
-1 स्टार 3 -1 स्टार 3 इक्वल्स टू व्हाट? -1 स्टार 3। यही डेफिनेशन लगाना है। ये की जगह -1 है, -1 -3 इक्वल्स टू -4। वैल्यू -4 आया, इसकी वैल्यू -4 आया, बिकॉज ये क्या बताएगा? a minus b 1 minus 2 -1 -1 3 3 -1 -3 4। ओके, -4। एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन ये भी देखना है। पहले इन दोनों को मिलाया, अब इन दोनों को मिलाएंगे फर्स्ट। सो क्या लिखना है? 1 स्टार 2 स्टार 3 दिस इक्वल्स टू फर्स्ट 1 स्टार 2 स्टार 3 2 minus 3 equals to 1 star -1. This is equals to what? 1 minus -1 equals to 2. यही हुआ ना? 1 star 2 star 3 2 star 3 means 2 minus 3 2 minus 3 2 minus 3 means -1. So 1 star -1 a और b बन गए ये अभी। तो 1 minus -1 1 minus minus plus 2. So both are different. Therefore 1 star 2 star 3 is not equals to 1 star 2 star 3, implies star is not associative. ये है लिखने का टेक्निक। वो गेस हो रहा था कि नॉट आने वाला है, सो एग्जांपल ले लिया, 1 2 3 के लिए करके देखा, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो दोनों साइड इक्वल नहीं है, मतलब ये प्रूव नहीं हो रहा है 1 2 3 के लिए। सबके लिए होना चाहिए, फॉर ऑल होना चाहिए। सो बट हियर फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यूज 1 2 3 दिस इज नॉट ट्रू, सो दिस इज नॉट एसोसिएटिव। तो फर्स्ट जो है वो एसोसिएटिव नहीं है। ओके, नाउ सेकेंड AB + 1। ओके, चलो तुम लोग बताओ, कोई ना कोई क्या होना है? रुद्र, थैलेंट, छाया, सृष्टि, सब लोग है अभी। बोलो सेकंड नंबर का एंड देन क्लोज करते हैं मीटिंग। सेकंड बोल के टेल मी, कोई बता सकते हो क्या होना है? एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव? अभी मीटिंग क्लोज करके जाना नहीं तुम लोग, अभी रहना अभी है एटलीस्ट 2-3 मिनट, देन सेकेंड का डिस्कशन हो जाए कम से कम। सेकेंड का सेकेंड व्हाट इज गिवन? a star b equals to ab plus 1, a star b equals to ab plus 1 for all ab belongs to q, set of natural number, set of rational number। ओके, ये क्या है? a star b equals to ab plus 1 for all ab belongs to q. This q means set of rational numbers. Okay, so commutative और associative होना है कि नहीं होना है? Just tell me, कुछ तो करो तुम लोग, बताओ ये associative होना है, commutative और associative होना है कि नहीं होना है? You know rational number जानते हो? rational number, हेलो, rational number क्या होता है? सृष्टि, हेलो। Yes, sir. रैशनल नंबर, कोई भी दो रैशनल नंबर को इंटू करो, ऑर्डर चेंज करके, सेम आएगा कि नहीं आएगा? एनी टू रैशनल नंबर, टेक एनी टू रैशनल नंबर एंड प्रोडक्ट करते हैं। जैसे 1/2 इंटू 3/5 ये निकालो, और 3/5 इंटू 1/2 निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आना है कि नहीं आना है? सेम आना है। किसी भी टाइप का दो रैशनल नंबर लो, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज कम्यूटेटिव, वी नो, ऐसा लिख सकते हैं, होता ही है। रैशनल नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो कम्यूटेटिव होता है, वी नो। जस्ट राइट दिस, वी नो AB equals to BA for all AB belongs to Q, we know। मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर लो, उसको प्रोडक्ट करो, AB करो चाहे BA करो, इक्वल होता है, वी नो। सो वी सी दैट A star B
A star B equals to, definition, this is definition, AB plus 1 can be written as BA plus 1, because we know that product of rational number is commutative. इसकी बात नहीं कर रहा हूं, रैशनल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी इक्वल टू बी ए होता है, वी नो. सो वी सी दैट बाय दिस डेफिनेशन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1 जो लिखा हुआ है डेफिनेशन से, इस ए बी की जगह पर बी ए लिख दिया. अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस यहां पर बी यहां पर ए, मतलब यहां बी यहां ए, इट कैन बी रिटन लाइक दिस, बी स्टार ए, बिकॉज ए बी को बी ए बना दिया, ये होता है. तो ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए बी इंप्लाइज ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए. ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव. ये इन जनरल प्रूव हुआ, ये इन जनरल, जैसे ये है ना, सब जगह ए बी लेके किया, ये वी नो दैट्स सो. सो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा. सो एसोसिएटिव होना है कि नहीं होना है, ये तो कम्यूटेटिव हो गया. एसोसिएटिव होगा, ये एसोसिएटिव तो नहीं होगा, नहीं लग रहा है. सो यू कैन टेक एग्जाम्पल. एसोसिएटिव नहीं होना है, यू कैन टेक एग्जाम्पल. सो देखो, अभी तुम लोग हो, अभी स्टे रहना 1 मिनट और आंसर बताना मेरे को. एसोसिएटिव नहीं है, केवल ये वैल्यू लेके कर दो. किसके लिए, एसोसिएटिविटी के लिए. फॉर 1/2, 1/3, 1/4 belongs to Q, we see that मीन्स एसोसिएटिविटी नहीं है पक्का. इसके लिए ना एक एग्जांपल देके बता रहे हैं. ये सब रैशनल नंबर टाइप कर लिया. सो ये अगर रैशनल नंबर है तो वही दिखाना पड़ेगा, ये सही नहीं है. वह एबीसी की जगह पे ये सब लिखा है. सो 1/2 स्टार 1/3 स्टार 1/4 इक्वल्स टू, एंड 1/2 स्टार, पहले इधर का कॉम्बिनेशन लो, पहले इधर का कॉम्बिनेशन लो, एंड देन इधर 1/3 स्टार 4. इन दोनों के वैल्यू निकालना है. ओके, जैसे पहला वाले वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या होगा, ए स्टार बी को, ए स्टार बी ए बी प्लस 1, सो 1/2 इंटू 1/3 प्लस 1 स्टार 1/4. जस्ट टेल मी वैल्यू. अब तुम लोग थोड़ा इतना वर्क करो, 1-2 मिनट लगना है. इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू कितना आ रहा है, टेल मी. हियर फर्स्ट वी ऑपरेट दिस, ए बी के जगह पे है ये, तो दिस इंटू दिस प्लस 1, जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ फिर से ये वाला लगाना है. यहां क्या आ रहा है, 1/6 स्टार 1/4. ओके, फिर से वही ऑपरेशन लगाना है, 1/6 इंटू 1/4 प्लस 1. सो व्हाट इज द वैल्यू, फाइनल वैल्यू. सिमिलरली हियर, टेल मी, जल्दी करो. क्या है वैल्यू, दिस इज इक्वल्स टू 1/6 इंटू 1/4 प्लस 1. ओके, यहां भी सॉल्व करो. 1/2 स्टार 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1, 1/2 स्टार. क्या होना है यहां पर वैल्यू, यहां गलत लिख दिया ना. अभी सब लोग मीटिंग में हो, इसको बताओ. यहां पर देखो मिस्टेक हो गया, 1/6 है ना, प्लस 1 7/6 हो गई. ये 7/6 था, 7/6 था. 7 प्लस
31/20. ओके, टेल मी, जल्दी बताओ क्या होगा। हेलो, कोई पेन कॉपी लेके बैठे हो, इसको बताओ। 1/2 लिया, स्टार 1/3 1/4, तो 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1, ये डेफिनेशन लगाया। 1/12 मीन्स व्हाट, 13/12, so this is equals to what, 1/2 into 13/12 plus 1, क्या होना है, 13/24 plus 1 equals to, ये वैल्यू तो बता दो, पढ़ रहे हो कि नहीं सब लोग। हेलो, क्या होना है, एक 3 एलिमेंट लेके हम लोगों ने ऐसा वाला कॉम्बिनेशन बनाया और लेफ्ट साइड और राइट साइड निकाल रहा हूं। इसकी वैल्यू क्या है ना, इसकी वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, एक आंसर तो दे दो, क्या होना है। 37/24. 37/24, क्या दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल नहीं है ना, सो नॉट एसोसिएटेड। No. सिंपल वैल्यू भी ले सकते हो, 2 3 4 4 5 6 7 8 9, बिकॉज दे आर आल्सो रैशनल नंबर, वो लेके भी कर सकते हैं, बट 1/1 करके लिया हूं यहां पर। ओके, सो हुआ। Since 1/2 star 1/3 star 1/4 is not equals to 1/2 star 1/3 star 1/4, implies star is not associative. Okay, so this is the process for proving whether a given operation is कॉम्पिटिटिव और एसोसिएटिव। ये मेन डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। नॉन नेगेटिविटी मतलब नॉट को प्रूव करना है तो एग्जांपल ले लो, एग्जांपल में भी अगर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो नॉट, यस देन यू हैव टू प्रूव जनरली। ओके, तो सेकंड में क्या हुआ, पहले कॉम्पिटिटिव यस था और इसमें नॉट एसोसिएटिव। ओके, तो क्लियर हुआ टॉपिक। हेलो छाया, हेलो, क्लियर हुआ टॉपिक, टेल मी Yes, sir. हाउ कैन यू प्रूव एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव। क्लियर हुआ ना। सो 9:40 हो गया। Yes, sir. ओके, मीटिंग क्लोज कर रहा हूं अभी, है ना।